And some breaking news coming in. Hindu organizations are holding protests against Rajasthan government over Jaipur road rage incident. Look at the visuals on your screen right now. Tensions prevailed in the old city of Jaipur on Saturday following the alleged murder of a 17-year-old youth in what police claimed was a misunderstanding following a road rage. Let's listen in. भीड़ है, लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों से यह आती जा रही है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और मुद्दा क्या है, विवाद को समझना होगा कि 3 दिन पहले यहाँ पर एक रोड रेज की घटना हुई। इसके पास में ही पीछे रामगंज का इलाका है जहाँ पर रोड रेज की घटना हुई। उस रोड रेज की घटना में दूसरे समुदाय का यानी मुस्लिम समुदाय के एक युवक की हत्या हो गई थी। उसके बाद में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होगी और जो भीड़ थी एक समुदाय विशेष की, आरोप ये है कि वो भीड़ यहाँ पर आ गई और सड़कों पर निकल आई और उन्होंने दुकानों में लूटपाट की। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें धमकियां दी गई और उसके विरोध में व्यापारी आज सड़क पर आ गए और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। और यही यहाँ पर तनाव की वजह बनी हुई है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक उनको सुरक्षा दी जाए, दूसरा जिन्होंने लूटपाट की बाजारों में उनको गिरफ्तार किया जाए। जी। My colleague Bhavani getting you a sense from the ground. Jaipur Police Commissioner had said that the incident took place under a local police area. The limits, were mentioned by the police commissioner. He also specified what kind of investigation is going on. They also said that they are questioning various people. They're talking to the locals, and 2 motorcycles had collided. There were 2 people on it. They stopped to see, and then we saw that the locals started assaulting them. There was no motive that can be established as of now. Let's once again listen. और उस तरीके से मदद की जानी जो आतंकी वारदात टाइप था, उसमें सरकार ने वैसा एक्शन नहीं लिया जैसा इस मामले में लिया जो रोड रेड की घटना थी, न कि सांप्रदायिक तनाव की वजह से हत्या का मामला। एक बार फिर मैं तस्वीर पे जाता हूं, फिर आपको बताऊंगा। पूरी तस्वीर को आप समझने की कोशिश करिए कि आप देखिए कि जयपुर शहर, यानी इसी को जयपुर शहर कहा जाता है। जयपुर की वॉल सिटी का जो सेंटर है ये, जिसे बड़ी चौपड़ कहा जाता है। Bhavani getting us all details on that entire story. As of now, there's no motive that can be established, but because the victim and the accused belong to 2 different communities, there's a communal angle that has erupted. There are allegations that one person, Iqbal, who was on the spot, allegedly got into an argument with a local from another community. Following this, some locals assaulted Iqbal with sticks and rods. He collapsed. He was rushed to the SMS hospital, where he succumbed to his injuries late on Friday during treatment. Police Commissioner has said that an FIR has been lodged in this connection, and most people involved in the murder have already been picked up. On Saturday morning, there were also angry locals who protested. Now certain Hindu organizations have come out and started protesting. What one cannot ignore in this entire story is that Rajasthan is a pole-bound state. Any incident of this nature which has communal overtones can flare up and can benefit one side or another. Not to name any political party here, but to point out that incidents like these at this point, the timing of it is very important, can prove to be productive or counterproductive depending on which side you really are. Those are the details coming in. This is a storm over the road rage case that has erupted. Let's once again listen. पहले बिल्डिंगों के ऊपर लोग चढ़ गए थे और उससे यहाँ पर, क्योंकि पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, काफी खतरा पैदा हो गया। वहाँ से खाली कराई जा रही है। अब नीचे जगह जगह पर यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, STF, देखिए कि STF को उतारा गया। बिल्कुल बीच के अंदर STF के जवान जा रहे हैं, भीड़ के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो नारेबाजी हो रही है, कई जगह पर तनाव की स्थिति है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पूरी जो भीड़ है इसको कंट्रोल में रखा जाए और ऐसे तनाव के हालात नहीं बिगड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि सामने हवा महल की तरफ तस्वीरें डाली है कि ऊपर बड़ी संख्या में लोग चढ़ गए। सामने की तरफ देखेंगे आप, जहां नजर दौड़ाएंगे वहां पर भी नीचे जगह नहीं है, लोग ऊपर चढ़ गए। और इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, ये हेरिटेज सिटी है, क्योंकि यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा है इसको, इसलिए खास तौर पर यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाए उसका भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। और पूरा बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। एक तस्वीर आप देखिए कि कैमरामैन मनीष को कहूँगा कि आपको बताएं कि जो रामगंज की ओर से जाने वाली जो तनाव वाला इलाका, एक तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको,
कि जो ये तनाव वाला इलाका जहां से तनाव हुआ उसको दिखाने की कोशिश करें। ये एसटीएफ तैनात की गई है यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ये सामने की तरफ जो तस्वीरें हैं ये रामगंज की तरफ, रामगंज वो इलाका जो समुदाय विशेष के लोगों की आबादी वहाँ पर ज़्यादा है और वो भीड़ जो 2-3 दिन पहले आई वो इस साइड से आई थी, इसलिए पूरा बैरिकेड लगाकर सील किया गया जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं हो, दो समुदायों में टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो, इसीलिए एसटीएफ को तैनात किया गया और भीड़ को इधर बढ़ने से रोका गया। सामने की तरफ हालांकि जो दूसरी रोडें हैं वहाँ पर जो व्यापारिक संगठन है, हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में, सामने देखिए कि अभी यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया। अलग अलग जगह पर, कुछ जगह पर रामधुनी की जा रही है, कुछ जगह पर आक्रोशित है भीड़, वो नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। लेकिन क्योंकि एक विरोध प्रदर्शन कहीं एक लेवल से ऊपर न चला जाए जिससे तनाव की स्थिति खड़ी हो जाए शहर में, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे वक्त में That's Bhavani on the spot. He is telling that the police has allowed these protests to happen, but they want to ensure that the protesters remain under control, the law and order situation remains under control. As I said earlier, because it can be a communally sensitive issue, it is very important and incumbent on any government to ensure that they create an atmosphere, they maintain an atmosphere which is conducive to normalcy, which is conducive to the overall law and order situation, and that's essentially very, very important for any government, including this one, Ashok Gehlot government. Rajasthan is a swing state. Each year the government changes and Ashok Gehlot would want to turn the tide in his favour. He would want to create history. Congress party says that they're fairly confident they're coming back to power. The BJP is the second key party in the state. It's largely a two-party state where each party has taken turns to form the government if you look at the record of the last few years. Hindu organizations are out there in Jaipur protesting. This issue is about a road rage incident that happened earlier in the last week. Tensions have prevailed in the old city of Jaipur following the alleged murder of a 17-year-old youth in what police claimed was a misunderstanding following a road rage. Arbaz Ahmed from News 18 is joining us on the broadcast. Arbaz, आपसे जानना चाहेंगे कौन-कौन से संगठन हैं जो इस समय धरना दे रहे हैं? पुलिस का क्या कहना है? क्या परिस्थिति इस समय पूरी तरीके से काबू में है? देखिए, इस वक्त पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स को जयपुर में बड़ी चौपड़ पर लगाया है। रामगंज बाजार जयपुर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जब उस लड़के के इकबाल की हत्या हुई तो काफी तादाद में लोग जो है मुस्लिम संगठन यहाँ पर आ गए थे। आज हिंदुवादी संगठनों की तरफ से एक बड़ा कॉल किया गया है बड़ी चौपड़ पर एक सेंसिटिव इलाके के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट को इधर परमिशन बहुत सोच समझ कर चाहिए थी, लेकिन काफी तादाद में 5-6 हज़ार लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस ने जो स्पेशल टास्क फोर्स है, वज्र वाहन है, दंगा नियंत्रण वाहन है, सारी चीजें यहाँ पर लगा दी हैं। भीड़ काफी ज्यादा है और जो आप देखिए कि जयपुर के और भाजपा के बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। सांसद दिया कुमारी यहाँ पहुंची है, जयपुर के सांसद पहुंचे हैं, कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, कई मंदिरों के पुजारी यहाँ पर हैं, खासतौर पर व्यापारिक संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भीड़ ने एक बार रामगंज बाजार में अंदर की तरफ जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनको पूरी तरह से पीछे की तरफ धकेल दिया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खुद जो कमिश्नर हैं जयपुर के बीजू जोसेफ वो यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस को उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है ये ताकीद कर रखी है, डायरेक्शन दे रखे हैं कि भीड़ को रामगंज बाजार की तरफ ना बढ़ने दिया जाए, जो कि हवा महल जयपुर का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहीं पर भीड़ जमी हुई है और यहाँ पर 1 बजे तक के लिए इनको परमिशन दी है। जो बीजू जोसेफ दौर है उन्होंने बातचीत की है बाकायदा आयोजकों से कि 1 बजे बाद वो पूरी भीड़ को यहाँ से हटा ले ताकि किसी तरह का यहाँ पर जो सेंसिटिव माहौल है, किसी तरह की सांप्रदायिकता है वो पैदा ना हो। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत में इस विरोध को जो है मना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संगठनों की ओर से जब दबाव डाला गया तो उन्होंने इस शर्त के साथ में परमिशन दी कि केवल 3 घंटे ही उनको इजाजत